Hi everyone, welcome back to our channel Job with RK. So today we are discussing the top 10 most asked Java interview questions you must know if you want to crack your Java interview. Whether you are a fresher or an experienced professional, these questions are commonly asked, so it's important to be well prepared. Make sure you watch till the end and don't forget to like, share, subscribe to our channel Job with RK for more Java interview questions and Spring Boot tutorials. So let's see the top 10 Java interview questions. So top 10 core Java interview questions. We have 10 questions. First one is, what are the key features of Java? Second, what is the purpose of super and this keyword in Java? What is compile time and runtime polymorphism? And in Java, why do we use static variables? What is access specifiers in Java? What do you mean by final keyword in Java? What is the differences between abstract class and interface? What is a marker interface in Java? What is the difference between string builder and string buffer class? What is a singleton class in Java? So let's see each and every question one by one. Okay, so let's see the first question. What are the key features of Java? So features of Java is simple, object oriented, platform independent, secure, robust, multi-threaded, high performance, distributed. So what do you mean by simple? Simple means easy to learn. Object oriented, everything is in object and classes. Platform independent, write once, run anywhere because of the JVM. इसके लिए हम आगे अब एक डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो सिक्योर, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, रन इन सैंडबॉक्स. तो कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से पॉइंटर्स नहीं है इसमें. रोबस्ट मीन्स हैंडल्स एरर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शंस. मल्टी थ्रेडेड मीन्स कैन रन मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली. ओके. High performance, use just in time compiler. Distributed means can work with files and programs across the network. So let's see the diagram. So diagram, uh, Java source code dot Java file. Then we compile our program. So after compile, it will be converted in bytecode. So dot class file. Dot class file बनने के बाद, it means bytecode convert होने के बाद एक बार हम उस बाइट कोड को कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि उसमें जेवीएम होना चाहिए. विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, डजंट मैटर. तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर एंड दिस कीवर्ड इन जावा? ओके. सो दिस कीवर्ड मीन्स दिस रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट used to call current class variables, methods or constructor. Super means refer to the parent class or you can say super class object used to access parent class variables, methods or constructor. For example, we have a class animal, string name equal to animal, class dog, extend animal, string same name equal to dog, void print names, s out this dot name, second s out super dot name. जो दिस डॉट नेम प्रिंट किया हमने उसमें करंट क्लास का वेरिएबल्स कॉल होगा. इट मीन्स डॉग प्रिंट होगा. सुपर में पेरेंट क्लास का कॉल होगा तो इट मीन्स एनिमल प्रिंट होगा. ओके. समझ आ गया सुपर और दिस का डिफरेंस. डिफरेंस प्लस दोनों का पर्पस क्या है आपको क्लियर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड, इट मीन्स मेथड ओवरलोडिंग. डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास have the same name but different parameters, types, numbers और order. या तो देखो टाइप में डिफरेंस कर दो आप, चाहे आप नंबर और पैरामीटर से कर दो, चाहे आप ऑर्डर पैरामीटर्स का ऑर्डर आगे पीछे कर दो. लाइक एक में इंट फ्लोट है, दूसरे में फ्लोट इंट ले सकते हो. ठीक है. इट इज कॉल्ड अ मेथड ओवरलोडिंग. सो द डिसीजन अबाउट विच मेथड टू कॉल इज मेड एट कंपाइल टाइम. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको क्यों बोलते हैं? इसमें कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा. ठीक है.
सेकंड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट मीन्स मेथड ओवरराइडिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार हम इसको बंद करते हैं। व्हेन ए सब क्लास प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स पेरेंट क्लास, इट्स कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। द मेथड टू कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम डायनेमिक बाइंडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है विच मेथड विल बी कॉल्ड। ओके, सो इसके लिए हम चलते हैं, एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं इसका विद, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। हम जो बोल रहे हैं ना कि कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है, रन टाइम पर डिसाइड होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। सो एग्जांपल लिए चलते हैं अपने एसटीएस में। ठीक है, इसको यहीं पॉज करते हैं, हम चलते हैं अपने एसटीएस में। सो हाय, सो ओके, सो पहले हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड ओवरलोडिंग। सो इस एग्जांपल में हमने क्या लिया यहाँ पे हमने एक क्लास है, क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, उसके तीन मेथड हमने ओवरलोड किए हैं, तीनों का मेथड नेम सेम है, पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो टाइप डिफरेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले जो मेथड उसके अंदर क्या है, ऐड इंट ए इंट बी। देयर आर टू पैरामीटर्स इन फर्स्ट मेथड, एंड सेकंड मेथड देयर आर थ्री पैरामीटर्स, एंड थर्ड मेथड देयर आर टू पैरामीटर्स but differ in types of parameters. Okay, so we have a main class, public class, compile time, poly. Okay, so we have static method, main method. Inside main method we create object of calculator class. Okay, now call one by one. Method first pass two parameters, then three parameters, then two parameters with okay, with two parameters. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, नाउ इन दिस केस इट डिसाइड ऑन द कंपाइल टाइम दैट विच मेथड विल बी कॉल्ड। सो देखो, चेक करें कंपाइलर यहाँ पे कि कौन से मेथड में दो पैरामीटर्स हैं इंट टाइप के। ठीक है, तो उसी मेथड को कॉल करेगा। किस मेथड्स में तीन पैरामीटर्स हैं इंट टाइप के, उस मेथड को कॉल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं रन करता हूँ इसको, जस्ट वेट। आउटपुट क्या आता है, एज पर एक्सपेक्टेड आता है। तो 3 2 5 यस, 2 3 4, 3 3 2 5 और 9, ठीक है। ओके, 2.5 3.5 हो गया, 6.0। ओके, सो आउटपुट हमारी उम्मीद के मुताबिक आया है, एज पर एक्सपेक्टेशंस आउटपुट आर प्रिंटेड ऑन द कंसोल। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें रन टाइम पर डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होना है। ठीक है, सो ओके, सो फॉर दैट वी हैव क्लास एनिमल। क्लास को हमने, एनिमल क्लास को हमने एक्सटेंड किया है डॉग क्लास के साथ। डॉग क्लास को फिर हमने कैट क्लास को, सॉरी एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया है कैट क्लास के साथ। ठीक है, उसके अंदर मेथड है साउंड साउंड साउंड, तीनों के अंदर अलग अलग वो है, डेफिनेशन दी हमने। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मेन क्लास है, पब्लिक क्लास रन टाइम पॉली, जिसका नाम मेन मेथड है, उसके अंदर क्या किया हमने, एक रेफरेंस बनाया है एनिमल क्लास का। ठीक है, बट हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं डॉग क्लास का, कैट क्लास का। ठीक है, तो और हमने रेफरेंस रखा है एनिमल क्लास का, जो कि पेरेंट क्लास है। इसको रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आता है, क्यों आता है। तो यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड हुआ है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डॉग क्लास का मेथड कॉल होगा, कैट क्लास का देन फिर उसका कॉल होगा। तो यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल होना है। ठीक है, क्लियर आपको, समझ आ गया कि रन टाइम में और कंपाइल में क्या डिफरेंस है। कंपाइल में तो कंपाइलर पे डिसाइड होता है कि विच मेथड विल बी कॉल, रन टाइम में कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है। ओके, सो कंप्लीट ये एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
लेट्स सी। ओके, सो अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है, विथ एन एग्जांपल समझे हमने, ठीक है। अब उससे अलग कुछ नहीं बचता है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा व्हाई डू वी यूज स्टैटिक वेरिएबल्स? स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या रिक्वायरमेंट है जावा में, हम क्यों यूज करें? सो स्टैटिक वेरिएबल्स belongs to class, not to any object. Okay, used for common properties shared by all object, like a company name. ठीक है, for example we have a class employee, string static string company TCS, for example string name, ठीक है, employee dot company, no need to create object. So जैसे कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जो सभी ऑब्जेक्ट के साथ हमें शेयर करनी है, तो हम उनको स्टैटिक बना सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनके, तो उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबकी कंपनी का नाम सेम होगा, ठीक है, तो हम उसको स्टैटिक बना देंगे। ये एक बार मेमोरी लेता है ये, ठीक है, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा? ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर्स मीन्स कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स पे इनको यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं भाई? हमको कंट्रोल लेना है कि हमें किस क्लास को कहाँ कहाँ पे एक्सेस कराना है, किस मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस वेरिएबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। ये चार एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया है, ठीक है, प्राइवेट विद इन ए क्लास ओनली, विद इन पैकेज नहीं, आउटसाइड द पैकेज नहीं, सब क्लास में नहीं। डिफॉल्ट विद इन क्लास तो यूज होता ही है, बट विद इन पैकेज भी इसका एक्सेस है, आप पैकेज के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोटेक्टेड क्या है? विद इन क्लास कोई दिक्कत नहीं है, विद इन पैकेज नो प्रॉब्लम, आउटसाइड द पैकेज नो नो नॉट पॉसिबल, आउट सब क्लास इट्स या इट्स पॉसिबल, ठीक है। पब्लिक विद इन क्लास, विद इन पैकेज, और यू कैन से लाइक आउटसाइड द पैकेज, सब क्लास, डजंट मैटर, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल कीवर्ड इन जावा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल वेरिएबल्स मीन्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, नो सब क्लासेस। अगर हम फाइनल वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं, इट मीन्स हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अगर मेथड के साथ यूज करते हैं, इट मीन्स कि हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास के साथ अगर हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फाइनल इंट एक्स इक्वल टू 10, इट मीन्स हम कांट बी चेंज, फाइनल वर्ड सो कांट बी ओवरराइड सो मेथड, फाइनल क्लास कांट बी एक्सटेंड माई क्लास। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between abstract class and interface? So abstract class and interface में difference देखते हैं। methods, abstract class can have abstract and concrete method, okay, but in interface all methods are abstract till Java 7, but after Java 7 we can have default and static method, but Java 8 plus, Java 8 के बाद हम default and static methods Java इंटरफेस में रख सकते हैं। वेरिएबल्स कैन हैव वेरिएबल्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं, आप वेरिएबल्स रख सकते हो, बट इंटरफेस के अंदर ओनली स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट्स। ओके, नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते, बट थ्रू इंटरफेस या वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, यूज क्या दोनों के? जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका यूज है इज ए रिलेशनशिप, ओके,
और यू कैन से पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। बट इंटरफेस फुल फुल एब्स्ट्रैक्शन can to relationship. Okay, for example, we have a class, abstract void sound, void it and sort उसके अंदर किया हमने। बट इंटरफेस में हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं मेथड को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कॉन्क्रीट मेथड भी रख सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मार्कर इंटरफेस इन जावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। सो मार्कर इंटरफेस हैज नो मेथड्स और नो fields, it's used to mark a class for special behavior. Okay, like serializable interface, clonable interface, these interface are marker interface. Okay, for example, class student implement serializable. Now this class can be serialized. So यहाँ पे हमने क्या किया, इस एग्जांपल में हमने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एक मार्कर इंटरफेस है। इसके पास कोई मेथड्स नहीं है, कोई फील्ड्स नहीं है, बट ये मार्क कर दिया इस क्लास को कि ये क्लास अब सीरियलाइजेबल हो गई है, उसको सीरियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between string builder and string buffer? It's a very important question for interview point of view, so you need to prepare this question. Okay, string builder and string buffer, चेक करते हैं इम्यूटेबिलिटी दोनों तीनों के बीच में। यस, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है, स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल है। ओके, थ्रेड शेप, यस, स्ट्रिंग जो है थ्रेड शेप है, स्ट्रिंग बिल्डर जो थ्रेड शेप नहीं है, स्ट्रिंग बफर यस थ्रेड शेप है। परफॉर्मेंस वाइज चेक करते हैं, यस, स्ट्रिंग जो है वो स्लो है फॉर चेंजेस, स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट है फॉर इट्स मीन सिंगल थ्रेड, स्ट्रिंग बफर स्लोअर फॉर मल्टी थ्रेड। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, और हमने नेक्स्ट लाइन में किया एस इक्वल टू एस प्लस एस कॉन्केटिनेशन वर्ड। इट मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर केस में हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर हेलो एंड देन एस बी डॉट अपेंड वर्ड। सो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बिल्डर का, वो मॉडिफाई कर देगा सेम ऑब्जेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिंगलटन क्लास इन जावा। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो सिंगलटन क्लास मीन्स ओनली वन इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड, यूज फॉर थिंग्स लाइक कॉन्फ़िगरेशन क्लास, लॉगर एक्सेट्रा। जहाँ हमको एक क्लास ऐसी चाहिए जिसका सिर्फ एक इंस्टेंस बने, तो वहाँ पे हम उस क्लास को सिंगलटन क्लास बना देंगे। अब सिंगलटन क्लास कैसे बनती है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखेंगे, डोंट वरी, बने रहिए मात्र 1 मिनट और। तो वी हैव ए क्लास सिंगलटन, नाम कुछ भी रख सकते हैं चलेगा। ठीक है, डिक्लेयर प्राइवेट स्टैटिक, एक क्लास का एक इंस्टेंस बनाइए प्राइवेट स्टैटिक। ओके, एक कंस्ट्रक्टर बनाइए प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन गेट इंस्टेंस, एक मेथड क्रिएट करिए पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप होगा उसका क्लास टाइप, और उसके अंदर एक इफ ब्लॉक लगाइए। चेक कीजिए जो इंस्टेंस है वो नल है क्या, अगर इंस्टेंस नल है तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दो, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, हमारी जो क्लास बनेगी सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन एस वन इक्वल टू सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, तो वो चेक करेगा कि इंस्टेंस नल है या नहीं, अगर नल नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। अब दोबारा हमने क्रिएट करने की कोशिश की है एक नया ऑब्जेक्ट सिंगलटन एस टू इक्वल टू सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, बट इस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है वही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न करते वो एग्जिस्टिंग जो है उसी को पास कर देगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल and subscribe and like to our channel Job with RK for more Java interview questions, and we conduct mock interview. If you are interested in mock interview, so in this video description box, uh, we put
and Google form link. You just fill this form and we will schedule your mock interview. Okay? अगर आप mock interview देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, हम आपके इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे, फिर जो कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ओके, सो जस्ट thanks for watching for this tutorial and see you in the next video. Okay, bye bye, take care.